a gun. This golden one is my brother's gun, and this one is mine. I like this one. Because here, and I think I got this. Actually, when we tried to, it comes like that. Actually, one like Diwali cracker will come out of this like that, and these are the bullets that make it, and this is how crackers look. Let me see. See? Okay, it's a bit cracking. Okay. I guess how to launch it, I'm going to show you means how to, take out the bullet place. That is the bullet section. See, I think you see this thing, right? If we pull that thing, it gets open. If you pull that thing, it gets open, and we can keep these same bullets inside here, and then keep it back in, then handle like that. But I'm going to show you when we are doing Diwali. I'm going to show you that like, see, you can hear so many people doing Diwali with crackers. Okay, now let's move to the next one. I'm going to keep everything aside what I've already shown you, so I won't get confused from that. We got these two, and I think this we have to keep fire in it, and it will blow around. yeah, it will blow. It kind of looks like this, but it's the mini one. Yeah, and this one has the big ones. That's why it's a big packet, because it has the big one. No, it has some small ones. I guess so, but let's see when we open it in Diwali when we also got an extra pack, but it's not. And this one is the medium size. Yeah. And yeah, that's how it spins. I really also like this one, but my most favorite are these ones, so I'm going to move those next. My brother's favorite is this one, but my favorite is this one. Keep those aside, and I've got this pack. This has two ones. This is a single one, and there are more two single ones. So two here. Total 5 are there. And my favorite is these ones. It's really my favorite. I can do like this. It's really fun doing that. And it's also safe to do by myself. Okay, that's exactly. And we have little ones here. I'm not sure what is this one, but These are the bombs. yeah. The red one. When we keep firing it and go far away, it actually comes near the sky, and it will, Not near the sky, it will blow down only. Oh yeah. Well, This is also the same packet. Yeah. Keep it aside. two people. So let me see. I really don't need that kind. Now it's time for flower pot, I guess. Yeah. Are these flower pots for you? No, this one is means the These blow in the sky? no. We don't have rockets. No. I'm not sure. Because rocket is dangerous. It can hit anyone. Yeah, that's why we didn't take too much of those, and it's also We did not even take one of them. Yeah, and it's also so loud. We need a less sound pollution. Actually, we are in 5th floor. Till down till up, it's actually so loud. Still. Okay. Maybe it's really loud there. Okay, I don't need to open it. Sorry. Keep them aside. And I think I'm all done with the crackers. And hope you enjoyed this video. Bye for now, only for now. I'm going to see you back in celebrating the Diwali down the floor. Yeah.
बहुत साल पहले एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की दो रानियां हुआ करती थी। एक रानी के बच्चे थे और एक रानी के बच्चे नहीं थे। तो जिस रानी के बच्चे नहीं थे ना, वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, गरीबों का धार्मिक कार्यक्रम करती थी, गरीब लोगों को, गरीब कन्याओं को बहुत दान दिया करती थी, साधु संत की बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन जो छोटी रानी थी ना, ना वो सेवा करती थी किसी की, ना वो पूजा पाठ करती थी। बस वो राजा को हर वक्त यही कहती थी कि इस बड़ी रानी को छोड़ो, इस बड़ी रानी को इस महल से निकाल दो। तो राजा भी परेशान हो गया और एक दिन बड़ी रानी ने ये बातें सुन ली और उसके बाद वो जंगलों में खुद ही चली गई। तो ऐसे बहुत साल बीतते गए। तो एक दिन राजमहल में एक पंतानी महालक्ष्मी के दिन सूत्रे लेकर छोटी रानी जिसके बच्चे थे उसको सूत्रे देने आई और उसने कहा कि कल महालक्ष्मी का व्रत है, तो तुम जो है सूत्रों का व्रत रखना, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हारे राजमहल में तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे पति की जो है आयु और बढ़ेगी। तो उसने बोला कि मुझे किस चीज की कमी है, मैं तुम्हारे ये धागों को क्या करूंगी, ये पीले धागे मेरे किस काम के हैं, मेरे पास तो सोने चांदी हीरो की कमी नहीं है, मैं इसका क्या करूंगी। अब पर तुम लाई हो तो ठीक है। वो ले लेती है उसे और उठाकर उसको अस्तबाल में फेंक देती है। और अस्तबाल में जब वो जमादारनी रोज की तरह सफाई करती है तो वो कहती है कि आज मुझसे कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा, क्या बात हो गई आज। वो कूड़ा पलट पलट के देखती है। जब वो सारा कूड़ा पलटती है तो देखती है उसमें सूत्रे होते हैं, धागे होते हैं। वो धागों को कहती है कि ये रानी कितनी खराब है ना, कि देखो इसने ये जो सूत्रे हैं कूड़े में फेंक दिया। अगर बड़ी रानी होती तो वो आज के दिन व्रत करती, पूजा करती, पाठ करती, इन सूत्रों को माथे पे लगाती, चूमती, चाटती और कितना वो सत्कार करती इनका। लेकिन देखो इसको कोई वो ही नहीं है। तो वो महल में जो मंत्री होता है, मंत्री को बुलाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि बड़ी रानी कहाँ रहती है, तुम ये कल महालक्ष्मी का व्रत है सूत्रों का, तो अगर तुम उसे जाके दे आओ तो क्या पता महालक्ष्मी उसके बुरे दिन भी खत्म कर दे, उसको भी राजमहल में आने का मौका मिले। तो जो मंत्री होता है वो लेकर सूत्रे जंगल में जाता है और उसी दिन बाय चांस जो है ना राजा शिकार करने के लिए चला जाता है अपने मंत्रियों के साथ। और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल जाता है और वो लोग तितर का शिकार करते हैं। और रानी को जो है मंत्री सूत्रे भी दे आता है और वो रात को ना वापस नहीं आ पाते। तो फिर राजा उसको कहता है अब आज रात को तो हम यहीं रुकेंगे, तो तुम ये तितर कहीं से भून के ले आओ, हम इसी को खा के जो है ना रात अपनी बिताएंगे। तो मंत्री कहता है ठीक है। तो वो दूर देखता है, एक झोपड़ी में आग लगी होती है, तो वहां जाके वो बोलता है कि हम ऐसे ऐसे उस देश के राजा हैं, आप क्या कहते हैं हमारा ये तितर भून दो। तो वो जो रानी होती है बड़ी, वो तितर भून देती है। फिर वो मंत्री कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कि आप इतने सुंदर हो, इतने आप तमीज से बात कर रहे हो, इतने अच्छे से बोल रहे हो, इतना लिहाजा आपका अच्छा है, तो आप इन जंगलों में क्यों रहते हो, आप तो मुझे संत महात्मा नहीं लगते। तो फिर वो अपनी सारी आप बीती बताती है। तो उनकी बातों में जो है वो तितर सारा सड़ जाता है। वो कहता है मैं तो राजा तो मुझे बहुत मारेगा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बकरी के दूध से ठीक कर देती हूँ। वो उसे बकरी का दूध डालकर ठीक कर देती है। तो राजा के पास जब मंत्री वो खीर लेकर जाता है, खाता है, जैसे ही वो एक टुकड़ा खाता है तो वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ किसने बनाया। वो कहता है कि मैं एक गांव में गया था, वहां पर किसी ने बनाया। उसने कहा कि मुझे तो उसके पास ले चल। तो मंत्री जो है राजा को लेकर उस वहां जाता है और वो देखता है वो तो उसकी पहली रानी होती है। वो तो उससे बहुत माफिया मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, छोटी रानी की बातों में आकर, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम घर वापस चलो, राजमहल में वापस चलो, मैं तुम्हें संतरी की जीवन जीने नहीं दूंगा। तो जो महात्मा ने रानी को रखा होता है इतने साल, तो वो भी कहता है कि बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं बेटा, अगर ये तुम्हें लेने आया है और अपनी गलती मान रहा था तो तुम्हें इसके साथ तुरंत चले जाना चाहिए। तो जाते समय उसे फूल देता है कि अगर ये फूल तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मुरझा जाएं तो तुम सोचना मैं किसी आपत्ति में हूँ बेटा, तो तुम मुझे मिलने जरूर आना,
वो कहती है ठीक है, तो वो खुशी खुशी जो है राजा के साथ महल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में थोड़ी दूर जाने पर देखती है कि सारे फूल मुरझा गए हैं, काले पड़ गए हैं। तो वो कहती है तो फूल सारे काले पड़ गए हैं, मुझे तो लगता है कि महात्मा जो है किसी परेशानी में है। तो राजा कहता है छोड़ो, क्या करना, अब तो तुम वहां से आई गई हो, अब उनकी परेशानी से हमें क्या लेना देना। तो वो कहती है नहीं, उनकी परेशानी से मुझे लेना देना है। जब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था तब उस महात्मा ने ही मुझे शरण दी थी और इतने साल मेरी ध्यान रखा था। तो वो जब वहां के जाके देखती है तो महात्मा तो सही होते हैं। महात्मा कहते हैं बेटा मैं तो ये देख रहा था कि पति के मिलते ही तो मुझे भूल तो नहीं गई, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे तेरी परीक्षा में तो पास हो गई, अब तुम अच्छे से खुशी से जाओ। तो राजा और रानी दोनों महल में पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। तो जैसे महालक्ष्मी ने रानी और राजा के दिन अच्छे किए, ऐसे ही महात्मा और ऐसे ही ज्ञान पाकर हमें भी महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। इन व्रत को सूत्रों का व्रत भी कहते हैं। और भगवान सभी के बच्चों की आयु लंबी करे, सभी के सुहाग बने रहें और महालक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो मैं एक बार इसी विशेष देते हुए आपको बोलती हूँ कि आप सभी को